ویلکم بیک۔ خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح میرپور خاص میں بھی سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایس ایس پی میرپور خاص کیپٹن ریٹائرڈ اسد علی چودھری نے 9 محرم الحرام پر نکلنے والے ماتمی جلوسوں کا دورہ کیا ہے اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ بھی لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایس ایس پی میرپور خاص کیپٹن ریٹائرڈ اسد علی چودھری نے کوٹ غلام محمد میر واہ اور میرپور خاص میں سنی میں نکلنے والے ماتمی جلوسوں کا دورہ کیا ہے اور از خود سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ بھی لیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں سے ملاقات بھی کی ہے اور جوانوں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی عزادار کو چیکنگ کے بغیر جلوس میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور انہیں فرض شناسی سے خدمات سر انجام اپنے دینے پر شاباش بھی تھی۔ دورے کے موقع پر سول ڈیفنس رینجرز انچارج CIA عنایت علی زرداری اور انچارج DIGP دانش احمد بھی موجود رہے۔ گوجرا میں بھی محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ گوجرا میں بھی ملک بھر کی طرح 8 محرم الحرام غازی عباس علمدار کی شہادت کا دن علمدار ہاؤس سید قمر عباس جعفری کی جانب سے خوبصورت علموں کا جلوس برآمد کیا گیا، جو کہ اپنے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا گلی گروہ اور میں پہنچا اور علماء کرام نے غازی عباس علمدار علیہ السلام کی لازوال قربانی پر فلسفہ اسلام کے تناظر میں اسلام آپاری کرنے اور غازی عباس علمداری علیہ السلام کے شبیہ علموں کا بڑا جلوس برآمد کیا۔ عزاداروں نے ماتم اور سینہ کوبی کی، علماء نے غازی عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت سے بیان کرتے ہوئے غازی کی شہادت اسلام کی آبپاری اور کرتے ہوئے سید قمر عباس جعفری کی جانب سے عزاداروں کے لیے وسیع حسینی لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کبیر والا سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ DSP کبیر والا سید اعجاز حسین بخاری خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ پنجاب پولیس ایلیٹ فورس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے جوان اپنے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت DSP کبیر والا سید اعجاز حسین بخاری سیکیورٹی کے انتظامات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے چودھری محمد امیر حمزہ جو اس وقت سیون کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کیا تفصیلات ہیں۔ جی چودھری محمد امیر حمزہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی، ملک کے دیگر شہروں کی طرح کبیر والا میں بھی جو ہے 9 محرم الحرام کے جو جلوس ہیں وہ پرامن طریقے سے جاری ہیں اور یہاں جو ہے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، ان کو مانیٹر کر رہے ہیں سرکل کبیر والا کے DSP سید اعجاز حسین بخاری۔ مزید میرے ساتھ وہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ سیکورٹی کے حوالے سے ان کا کیا جو ہے اظہار خیال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی۔ آج ہمارا 9 محرم الحرام کا جلوس ہے جو بستی درخان والا تھانہ سرائے سدو سے نکلنا اور امام بارگاہ جانا ہے۔ یہ ایک کیٹیگری کا اور انتہائی سینسٹیو جلوس ہے۔ یہاں ہم نے ڈیوٹی کے بالکل مکمل اور فول پروف انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ 60 کے قریب ہمارے جوان اور افسران یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ ایسے جو تھانہ سرائے سدو خود آن دا اسپاٹ موقع پہ اس کو سارے جلوس کی نگرانی کر رہے ہیں اور ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایلیٹ ہے، ٹریفک ہے، وہ ڈیوٹی بھی ہمارے ساتھ، ہمیں خود بھی یہاں پہ موجود ہوں۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنے تئیں انتہائی اچھے اور مؤثر انتظامات کیے ہوئے ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہمارا جلوس بخیر و عافیت اختتام پذیر ہوگا۔ شکریہ جی، آپ نے DSP کبیر والا سید اعجاز حسین بخاری کی بات سنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک کیٹیگری کا ایک جلوس ہے، بہت سینسٹیو ہے اور یہاں 60 سے زیادہ نوجوان پولیس والے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ جو ہے SHO سرائے سدو ذیشان الہی گیل ان کو مانیٹر کر رہے ہیں اور DSP سید اعجاز بخاری بھی یہاں پر موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جلوس انشاءاللہ بخیر و عافیت اپنی منزل تک پہنچے گا۔ جی، حافظ آباد میں 9 اور 10 محرم الحرام کے حوالے سے ضلع انتظامیہ حافظ آباد کی جانب سے کیا گیا انتظام کیسا ہے، مزید بات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے محمد بلال سے۔ جی بلال، آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, हाफिज आबाद में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को जिला भर में 63 जुलूस निकाले जाएंगे, जिनमें 7 जुलूस हसास एक कैटेगरी में शामिल हैं। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों की गुजरगाहों पर 120 से ज़ायद CCTV कैमराजात लगाए गए हैं। DC ऑफिस, DPO ऑफिस और सिटी पुलिस ऑफिस में 3 कंट्रोलर रूम कायम किए गए हैं। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को जिला हाफिजाबाद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है और साथ साथ जिला भर में दफ़ा 144 का नफाज भी कर दिया गया है। अगर बात की जाए जिले इंतजामिया की, तो इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस महकमा सेहत म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारान ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि DPO हाफिजाबाद की जानिब से अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। जुलूसों के दाखिली और खारजी रास्तों से वॉक थ्रू गेट से चेकिंग की जा रही है। जुलूसों के एतराफ पुलिस के स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। जी वेलकम बैक। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से आपको आगाह करेंगे कि मंडी बहाउद्दीन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की करबला में लाज़वाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस पीर बग्गे शाह से इमाम बारगाह हुसैनिया इख्तिताम पसीर हो गया। आपको बताते चलें कि मुल्क भर की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकालने के लिए जुलूस में असदारान इमाम हुसैन की कसीर तादाद में शिरकत करके इमाम आली मुकाम सैयद शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की लाज़वाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। जुलूस में जगह जगह पर शहज़ादा अली असगर की याद में पानी की सबीलें लगाई गई थी और लंगर व नियाज के इंतज़ाम भी किए गए थे। जुलूस के साथ साथ रेस्क्यू 1122 डॉक्टर बल्दिया मुलाजमीन भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे, जबकि सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके रुफ़क़ा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हैदराबाद में भी 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी मातमी जुलूस बरामद हो गया है। जुलूस और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ाम किए गए हैं, सबीलें भी लगाई गई हैं और अज़ादारों की बड़ी तादाद यहाँ पर शरीक है। आपको बताएं कि मुख्तलिफ मुकामात पर स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। नज़र नियाज का सिलसिला भी जारी है। हाथों में अलम उठाए अज़ादारों की बड़ी तादाद इस मरकज़ी जुलूस में शरीक है और सब ही अलम उठाए हुए हैं, हाथों में परचम भी लहरा रहे हैं और इसी अज़ादारी का सिलसिला कहते हैं कि क़यामत तक यूं ही जारी रहेगा। शोरकोट का भी अहवाल जान लेते हैं। आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से अज़ादारान हुसैन ने आज 9 मुहर्रम उल हराम का कदीमी मरकज़ी जुलूस डेरा अनवर शाह कुरैशी से बरामद किया और सुल्तान उल आरफीन के माँ बाप के दरबार के सामने से गुजरते हुए इमाम बारगाह हैदरिया में इख्तिताम पजीर हुआ। आपको बताएं कि तहसील शोरकोट में मुहर्रम उल हराम के हवाले से डेरा अनवर शाह कुरैशी पर सुबह 9 बजे मजलिस आज़ा मुनक्किद हुई, जो कि 11 बजे इख्तिताम पजीर होने के बाद अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी कदीमी जुलूस डेरा अनवर शाह कुरैशी से बरामद हुआ और रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हैदरिया में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में नोहा ख्वानी के साथ साथ मातमदारी भी की गई। मातमी दस्तों और अज़ादारान को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए पानी का स्प्रे भी किया जाता रहा और इसके साथ साथ दूध, चाय और ठंडे पानी की सबीलें भी लगाई गई। जुलूस के हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के इदारे भी सरगर्म दिखाई दिए। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह पाक पतन में भी शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए मातमी जुलूस
निकाले जा रहे हैं। ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई जा रही हैं और मजालिस का एहतमाम भी किया जा रहा है। आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह पाक पतन में भी शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। दुनिया भर की तरह पाक पतन में भी शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। जगह जगह ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई जा रही हैं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अल्लाह की राह में हक़ पर डटे रहना, इस्लाम की खातिर जहाद करना, ज़ालिम हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक़ बुलंद करना, अल्लाह की राह में अपनी कीमती जानों के नजराने पेश करके इशार व कुर्बानी की लाजवाल अनमेट मिसालें रकम करने का तज़किरा करने के लिए मजालिस मुनक्कद की जा रही हैं। इसी सिलसिले में बस्ती बगेशा और डक्की मोल लाल से बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं जो मरकज़ी इमाम बारगाह अली रज़ा पर इख्तिताम पजीर होंगे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खून से इस्लाम के गुलशन की आबियारी की, बातिल के सामने डट जाना ही हुसैनियत है। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रज़ा, मेट्रो 1 न्यूज़, पाक पतन। दुनिया भर की तरह पाक पतन में भी शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए निहायत अकीदत और एहतराम के साथ जहलम से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। 10वीं मुहर्रम तक 663 मजालिस और 121 जुलूस बरामद होंगे और इन तमाम जुलूसों को 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं जहलम से हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान कादरी से। जी अब्दुर्रहमान कादरी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। जहलम में मुहर्रम अल हराम के सिलसिला में मजालिस का सिलसिला जारी है। ज़िला भर में 10वीं मुहर्रम को 673 मजालिस मुनक्कद होंगी जबकि 121 जुलूस बरामद होंगे। तमाम जुलूसों को 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। ए कैटेगरी के 10, बी के 7 और सी कैटेगरी के 104 जुलूस बरामद होंगे। जेलम पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ज़िला भर में 1300 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान ड्यूटी पर तैनात होंगे। जुलूस के तमाम रास्तों पर कड़ी निगरानी की जाएगी। CCTV और ड्रोन कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारें लगाकर पुलिस की नफरी को तैनात किया जाएगा ताकि किसी किस्म की कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि ज़िला भर में 9 मुहर्रम अल हराम से 150 मजालिस और 103 जुलूस बरामद होंगे। असरदारों जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 3415 अफसरान और जवान सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहे हैं। 3000 से ज़ायद रज़ाकार भी पुलिस की मुआवनत करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद अहवाल जान लेते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी मोहम्मद नदीम डार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम हराम के मौके पर गुजरावाला में 103 आज़ादारी जुलूस निकाले जा रहे हैं जबकि 150 के करीब जो मजालत है वो इनकार पजीर होगी। इस हवाले से आपको बताते चलें कि जो मरकजी जुलूस है वो इमाम बारगाह अली अकबर से बरामद हो गया है और जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जिला भर में 3400 के करीब पुलिस अफसरान और जो जवान हैं वो जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए वो तैनात किए गए हैं और जबकि जो पुलिस और के साथ साथ जो पाक फौज और रेंजर की जो कंपनियां वो भी शहर में अमन अमान की सूरत को बरकरार के लिए शहर में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए रीजन भर की तो रीजन भर में जो 9वीं मुहर्रम के सिलसिला में 300 के करीब जुलूस जो है वो बरामद होंगे जबकि 687 जो मुजालस है इनकार पजीर होगी। जो RPO गुजरावाला तैयब फीतिमा, उनका कहना है कि क्या में अमन और मजहबी रवादारी का फरोग हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। जी मुल्क भर की तरह सादकाबाद में भी 9 मुहर्रम अल हराम निहायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 9 मुहर्रम अल हराम के हवाले से मुख्तलिफ चौक चौराहों पर सबीलों का अहतमाम किया गया है। सबीलें लगाने का मकसद शोहदाए करबला की प्यास को याद करना है। मजीद अहवाल बता रहे हैं सादकाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी। जी शहबाज मीरानी, आगाह कीजिएगा।
بالکل ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح صادق آباد کے علاقے احمد پور لمحہ میں بھی 9 محرم الحرام نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 9 محرم الحرام کے حوالے سے جو احمد پور لمحہ کے اب مختلف چوک چوراہوں پر سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ننھے منھے بچے اور راہگیر کو جو ہے اب سبیلیں پلائی جا رہی ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں احمد پور لمحہ کے ایک سبیل کے پوائنٹ پر، میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہیں جی، ان سے بات کریں گے، جانیں گے کیا کہیں گے جی سبیل لگانے کا مقصد کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 محرم الحرام کے جانب سے ہم نے سبیل پوائنٹ لگائی ہے۔ سبیل پوائنٹ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ شہدائے کربلا کی پیاس کو یاد رکھا جائے اور یہ سلسلہ ہم تا قیامت تک جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا بالکل جیسا کہ آپ نے دیکھا سنا، راہگیر اور ننھے منھے بچوں کو آج سبیل پلائی جا رہی ہے۔ سبیل پلانے کا مقصد شہدائے کربلا کی پیاس کو یاد کرنا ہے۔ شہری اور عزاداروں کا کہنا تھا آج سبیل لگانے کا سلسلہ جو ہے یوں ہی قیامت تک جاری رکھیں گے۔ جی یوں تو محرم الحرام میں ہر مسلمان شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، مگر گجرات میں ایک عقیدت مند کی طرف سے شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر کے نام سے منسوب حسینی بادشاہی دودھ کی ایسی سبیل لگائی گئی ہے جہاں پر عزاداروں کو مکھن، کھوئے اور اجوا کھجور والا دودھ پلایا جا رہا ہے۔ اختتام پر 25 زیارات کے ٹکٹ اور 15 عمرے کے ٹکٹ بھی نکلیں گے۔ مزید بات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے رانا نذیر سے۔ جی رانا نذیر، آگاہ کیجیے گا۔ 3 دن دے تریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا۔ جی بالکل، میں اس وقت جی ٹی ایس چوک گجرات میں موجود ہوں، جہاں پہ ضلع گجرات کی نہیں بلکہ پنجاب کی بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، دودھ اور ملک شیک اور دیگر لوازمات ڈال کر بہت بڑی سبیل کا اہتمام کیا جاتا ہے اور یہ سبیل 3 روز تک جاری رہتی ہے۔ میرے ساتھ شفیق حیدری صاحب موجود ہیں، دیگر تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی بتائیے گا کہ اس بار کیا کیا مینیو ہے اور کیا کیا چیزیں؟ دیکھیں، مینیو ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سرکار کے منسوب کے نام سے میٹھا دودھ، یہ اجوا کھجور والا دودھ ہے، کھوئے والا دودھ ہے اور انشاءاللہ مینگو شیک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے یہ مکھن ملائی والا دودھ بنوا رکھا ہے اور الحمدللہ ہم نے 3 قسم کے دودھ تیار کروا رکھے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے نواسہ رسول کے مہمانوں کو ہم اس گولڈ کے برتن سے، گولڈ کے گلاس سے اور گولڈ کے پیمانے سے دودھ پلاتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے مہمانوں کے لیے ہم نے یہ ایک زیارت بنوا رکھی ہے جو ام المصائب شریکۃ الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ سرکار آپ کے لختے کی تلوار ہے۔ انشاءاللہ اس سبیل کے اہتمام پہ ایک بہت بڑی قراندازی ہوگی انشاءاللہ، جس میں 25 زیارات کے ٹکٹ ہیں اور 10 عمرے کے ٹکٹ ہیں جو بذریعہ قراندازی دیے جائیں گے۔ جن زائرین کے قرے نکلیں گے ان کے ہمراہ یہ تلوار ہم شام میں پیش کریں گے۔ جی بالکل، یہ ہر سال کی طرح اس بار ٹھٹہ کا بھی حوال جان لیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کے مختلف مقامات پر شہدائے کربلا کی یاد میں عزاداران امام حسین علیہ السلام کی جانب سے ٹھنڈے پانی اور شربت کی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ سبیلوں کو برقی کمکموں اور روشنیوں سے سجایا بھی گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سبیلوں سے پیاسے راہگیر اور مسافروں کو ٹھنڈے شربت اور پانی پلا کر شہدائے کربلا کے معصوم پیاسوں کو پرسا دے رہے ہیں۔ سبیل لگانے کا مقصد جہاں پیاسوں کی خدمت کرنا ہے، وہیں لوگوں میں اس احساس کو بھی زندہ رکھنا ہے کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے 3 دن کے پیاسے جام شہادت نوش کیا۔ پیاسے اہل بیت نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر نانا نبی کے دین کو بچایا۔ سبیلوں کے علاوہ شہر بھر میں نیاز بھی بانٹی جا رہی ہے۔ چونیا سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ 9 محرم الحرام کا اندرون قلعہ روپا سنگھ سے صبح 9 بجے برآمد ہوگا۔ جونیا میں شبیہ ذوالجناح کا ماتمی جلوس سید الطاف حسین زیدی کی رہائش گاہ سے برآمد ہوا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں پر خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ
गला मंडी हुसैनिया में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौके पर मोमिनीन की जानिब से नवासा रसूल और शहदाए करबला की याद में नज़र नियाज और लंगर का सिलसिला भी जारी रहा। मुल्क भर की तरह टंडो मोहम्मद खान में भी मुहर्रम अल हराम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मजालिस और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर नियाज, लंगर और सबीलों का अहतमाम किया गया है। मुल्क भर की तरह टंडो मोहम्मद खान में भी मातमी जुलूसों मजालिस की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स पुलिस के एहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पुलिस को तैनात किया गया है। मुल्क भर की तरह मियाँ चुन्नू में भी 9 मुहर्रम अल हराम के जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। मियाँ चुन्नू में फैसल टाउन और बालाई मंजिल अल काइम प्लाजा में अशराए मुहर्रम की 9वीं मजालिस के बाद हज़रत अली अकबर के शबीए ताबूत बरामद हुए, जिसके बाद लियाकत रोड पर बड़ी मजलिस अज़ा का आगाज़ हो गया। बिला मन्नू शरीफ गली नंबर 7 गुलिस्तान ज़हरा में भी मजलिस अज़ा का आगाज़ हो गया। आज शाम शबीए जुलजना का मातमी जुलूस बरामद होगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात भी किए गए हैं। भावलपुर में 9 मुहर्रम अल हराम का कदीमी मातमी जुलूस बेरीवाला चौक से बरामद हुआ। जुलूस शिया मस्जिद में इख्तिताम पजीर होगा। आपको बताएं कि भावलपुर के मरकज़ी जुलूस में शहीद और अलम और जुलजना और ज़ियारत भी की गई। जुलूस में हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस बेरीवाला चौक शादरा से मॉडल टाउन से शादरा बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ सराफा बाज़ार, चौक कला, फ़तह खान बाज़ार से होता हुआ बाद नमाज मगरिब मरकज़ी जामिया मस्जिद में इख्तिताम पजीर होगा। DPO असद सरफराज खान के मुताबिक 9 मुहर्रम अल हराम भावलपुर ज़िला में 30 जुलूस और 77 मजालिस अज़ा मुनक्किद की जाएंगी, जिन पर 1650 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकारों के अलावा 1606 फ्रंटियर्स भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हमरा डॉल्फिन फोर्स, ईगल स्क्वाड, स्पेशल ब्रांच और एलीट फोर्स भी शामिल हैं। मुहर्रम अल हराम के मौके पर शहरियों ने शहर खामोशा का रुख कर लिया है। शहरी अपने प्यारों की कब्रों की सफाई सुथराई के साथ साथ फातिहा ख्वानी भी कर रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चिनाब नगर से हमारे नुमाइंदे मलिक नवाज। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा। मुहर्रम अल हराम में एक तरफ मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी जानिब शहरियों की बड़ी तादाद ने शहर खामोशा का रुख कर लिया, जहाँ पे शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर सफाई सुथराई लपाई के साथ फूलों की पत्तियाँ निछावर कर रहे हैं और फातिहा खानी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं। आइए से जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, बताइएगा इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। हम जब आए हैं पीर आपकी जवान के अंदर हम अपने प्यारों की कब्रों पर फूल खानी, सफाई सुथराई और लिपाई का काम करने आए हैं और फूल पत्तियाँ निछावर करने आए हैं और हम अपने प्यारों की कब्रों के ऊपर कुल खाने करने हैं। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरियों का कहना है कि हम अपनी प्यारों की कब्रों पर आए हैं, कब्रों की सफाई सुथराई के साथ साथ जो है फूलों की पत्तियाँ निछावर करें और फातिहा खानी कर रहे हैं, जिससे हमें दिली सुकून मिलता है। जी, शकरगढ़ से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मुहर्रम अल हराम का महीना शुरू होते ही शहरी अपने प्यारों की कब्रों का रुख कर लेते हैं, दुआए मग़फ़िरत और कुरान ख़्वानी करते हैं। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ शकरगढ़ के हमारे नुमाइंदे राना इश्तियाक, जो इस वक्त एक कब्रिस्तान में मौजूद है। जी राना इश्तियाक, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मुहर्रम हराम का महीना शुरू होते ही करबला शहदा की याद ताज़ा होते ही शकरगढ़ के जो शहरी हैं अपने प्यारों की कब्रों का रुख कर लेते हैं खामोशा शहरा में। इस वक्त मैं एक कब्रिस्तान में मौजूद हूं जहां पर मेरे साथ शहरी मौजूद है। हम उनसे जानते हैं शहरी से कि वो इस कब्रिस्तान में आए हैं, उसके वाले से वो क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे आप? जी हाँ, जब मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है तो तब लोग कब्रिस्तान का रुख कर लेते हैं। हम भी पहले मुहर्रम से रुख कर लेते हैं, कब्रिस्तान में आते हैं, उनके लिए कब्रिस्तान में आकर सफाई करते हैं, अपने दादे दादी को पाए के बख्शते हैं, उनकी बख्शिश की दुआ करते हैं। उसके बाद जब 9-10 मुहर्रम आता है तब मिट्टी आती है कब्रिस्तान में, हम मिट्टी डालने के लिए आते हैं। 9-10 मुहर्रम को मिट्टी डालते हैं, उसके बाद फूल निशावर करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी बख्शिश की दुआ करते हैं, उनकी रूह को पाए कर पेश करते हैं। जी बिल्कुल, आपने शायरी की बात सुनी। उनका ये कहना है कि मुहर्रम का महीना आते ही हम पूरा महीना अपने प्यारों की कब्रों पर आ जाते हैं। वहाँ पर आकर हम उनकी जो कब्रें हैं मरम्मत करते हैं, उन पर फूल निशावर करते हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। उनके लिए हम यहाँ पर आकर कुरान ख़वानी भी करते हैं। जी मुहर्रम अल हराम में शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करने पहुंच गए हैं। इस मौके पर शहरी कब्रों की तामीर और मरम्मत और पानी का छिड़काव भी कर रहे हैं, फूलों की चादर भी चढ़ा रहे हैं। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार की ये रिपोर्ट। दुनिया से जाने वाले अपने प्यारों से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए शहरियों की बड़ी तादाद ने शहर खामोशा का रुख कर लिया, जहां पर शहरी अपने प्यारों की कब्रों की तामीर और मरम्मत और पानी का छिड़काव और फूलों की पत्तियां निशावर कर रहे हैं। फातिहा ख़वानी करके उनकी मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआ करते दिखाई दे रहे हैं। कब्रिस्तान में कब्रों की लिपाई करने वाले अफराद रोज़ी कमाने के लिए कब्रों की लिपाई और चूना वगैरह भी कर रहे हैं। हम यहाँ कब्रिस्तान आए हैं, अपने प्यारों की कब्रों की मरम्मत, फातिहा ख़वानी और कुरान ख़वानी करते हैं। ये ना रस्म और रिवाज है, बल्कि हम प्यारों की याद ताज़ा करने के लिए आते हैं ताकि उनकी निशानियाँ यहाँ रहें, बाक़ियात रहें और उनकी दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। शहरियों का कहना है कि मुहर्रम अल हराम में कब्रों की तामीर और मरम्मत करना कोई रस्म और रिवाज नहीं है, ताकि हमारे प्यारों की कब्रों की निशानियाँ मौजूद रहें। जी आज 9 मुहर्रम का महीना है, हम इधर अपने प्यारों की कब्रों पे आए, अपने प्यारों की कब्रें लिपाई वगैरह की है और इधर हमने उनके कब्रों पे फूल वगैरह डालकर और पानी वगैरह डालकर उनके फातिहा वगैरह पढ़ी है। और इधर हम इधर आते हैं और देखते हैं और लोग भी अपने प्यारों की कब्रों पे आते हैं, उनकी लिपाई वगैरह करते हैं, पानी वगैरह डालते हैं और उनके लिए फातिहा वगैरह पढ़ते हैं। शहरियों का कहना है कि मुहर्रम अल हराम में ही अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं ताकि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफ्फार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। मुहर्रम अल हराम के दिनों में हारून आबाद में बड़ी तादाद में लोगों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया है, अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दी है और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं भी की है, कब्रों की सफाई सुथराई और मरम्मत की है, फूल भी चढ़ाए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं हारून आबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद अली गौरी से। जी अरशद अली गौरी, आगाह कीजिएगा। मुहर्रम उल हराम के दिनों में कब्रिस्तान जाने की रिवायत बहुत पुरानी है। लोग मुहर्रम उल हराम के दिनों में अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर खुसूसी तौर पर हाजिरी देते हैं। मुहर्रम उल हराम के दिनों में हारूनाबाद के कब्रिस्तानों में सुबह सवेरे ही लोगों की बड़ी तादाद पहुंच जाती है और अपने प्यारों की मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगते नजर आते हैं और कब्रों पर फूल चढ़ाते और अगरबत्तियां भी जलाते हैं। मुहर्रम अल हराम को कब्रिस्तान आना हमारी पुरानी रवायत है। हम अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं, उनकी फातिहा ख़वानी करते हैं और कब्रों की मरम्मत करते हैं। शहीद करबला की याद में इन कब्रों की सफाई और सुथराई की जाती है। मुहर्रम हराम के महीने में हम कब्रों पर जाते हैं और अपने प्यारों की कब्र पर फातिहा ख़वानी करते हैं और उनकी सफाई मरम्मत करते हैं। मुहर्रम हराम में कब्रिस्तान के बाहर खड़े फूल पत्तियों वाले और दीगर अशिया बेचने वाले आम दिनों की निस्बत 2 गुना मुनाफे के साथ चीज़ें बेच रहे हैं और अवामुन्नास को लूट रहे हैं। मुहर्रम उल हराम में हारूनाबाद के कब्रिस्तानों में कब्रों की लिपाई और मरम्मत का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से कब्रिस्तानों में शहरियों की गहमागहमी देखने में आ रही है। लोग अपने प्यारों की कब्रों पर खजूर के पत्ते और दालें डालने के साथ साथ अगरबत्तियां भी लगा रहे हैं और कब्रों पर कुरान ख़वानी भी कर रहे हैं। दूसरी जानब कब्रिस्तानों के बाहर खजूर के पत्ते, दालें और अगरबत्तियां बेचने वालों ने कीमतें भी दुगना कर दी हैं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। 8 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस अलम और सुलझना का जुलूस अपने मुकर्ररा वक्त पर इमाम बारगाह पश्तिया से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह
حسینیہ اٹک کینٹ میں اختتام پذیر ہوا۔ اس جلوس میں سینکڑوں عزاداران حسین نے شرکت کی۔ امام بارگاہ پنجتنی میں مولانا نانا نظم حسین جعفری مکتب مشہد ایران نے عنوان اختیارات آل محمد کے عنوان سے خطاب کیا۔ آپ کو بتائیں کہ امام بارگاہ پنجتنی اٹک میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ کربلا حق کی فتح ہے اور شہدائے کربلا کی عظیم بے مثال قربانیاں قیامت تک جاری رہیں گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انسانیت کے لیے مینار ہدایت کا کام دیتی رہے گی۔ باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہی حسینیت ہے۔ بعد ازاں جلوس کے شرکا نے نماز ظہرین جس کا اہتمام انجمن شہزادہ علی اکبر نے کیا۔ نماز ظہرین سید صفدر زیدی نے ادا کروائی۔ 8 محرم الحرام کے جلوس امام بارگاہ پنجتنی کے رضاکاروں نے سیکیورٹی انچارج سے سید قرار رضوی کی ہدایت پر رضاکاروں کی ڈیوٹیاں مقرر کیں، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے جلوس کے روٹ پر آنے والے تمام راستوں کو کانٹوں اور خاردار تاروں کے ذریعے بند کر دیا گیا۔ جلوس میں کم و بیش 400 اہلکاروں اور افسران نے اپنی سیکیورٹی کی ڈیوٹی سر انجام دی۔ عزاداران حسین نے چوک فوارہ کے مقام پر زنجیر زنی کی، جبکہ 1122 اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسفن یار کی ایمبولنس میں پیرا میڈیکل اسٹاف موجود رہا۔ جلوس اپنے وقت مقررہ پر امام بارگاہ حسینیہ اٹک کینٹ میں اختتام پذیر ہوا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 9 محرم الحرام کے بابرکت دن پر برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ سلطان الاشکین حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو غسل دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید احوال جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ اے ڈی عامر سے۔ جی عامر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کو جو ہے غسل دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ولی عہد دربار فرید موجود ہے، ان سے جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم سر، آج مزار پر غسل بھی دیا گیا ہے اور آج کی مناسبت سے عالم اسلام کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی، یہ جیسے کہ روایت کے مطابق دربار حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کو موجودہ سیاست نشین دربار فرید خواجہ غلام فرید کو جانے ارک گلاب سے غسل دیے ہیں۔ آج 9 محرم کا دن ہے، شہدائے کربلا کی شہادت قربانی کی زوال داستان کو یاد کرنے کا دن ہے، اور ہمیں حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے اس سے سیکھ ملتی ہے کہ دین اسلام کی خاطر، حق سچ کی خاطر ہمیں کسی بھی قربانی سے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جی، شہدائے کربلا کی یاد جو ہے وہ اسی طریقے سے کی جاتی ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ دیا جائے۔ جی، شہرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز۔